Hello student, today we are going to study the properties of the periodic table. So the first property we are going to study, that is atomic radius. Atomic radius. Can you tell me what is the atomic radius? Atomic radius is the distance from nucleus to the outermost shell, that is called atomic radius, and it's represented by r. So suppose this is the atom, and atom having the nucleus, and this is the outermost shell. So the distance between from nucleus to the outermost electron, that is called atomic radius. और atomic radius हमारे पास अलग अलग तरह की होती है. जैसे first atomic radius जो हम मानते हैं, that is first atomic radius is a covalent radius. Second atomic radius के बारे में अगर हम बात करते हैं, so that is called ionic radius. And third is van der Waals. And fourth is metallic radius. सी एटॉमिक रेडियस इन चारों रेडियस के एवरेज को लेकर ही पीरियोडिक टेबल में डिसाइड की गई है. अब पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इनका ट्रेंड आता है कि व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम किस तरह से चेंजेस होता है, और व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तब उसमें किस तरह से चेंजेस होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोवेलेंट रेडियस क्या है, आयोनिक क्या है, वैन डर वाल्स क्या है एंड मेटालिक क्या है. सो फर्स्ट कम टू द कोवेलेंट रेडियस. आप जानते होंगे कोवेलेंट रेडियस, सपोज एक एटम है, दिस इज न्यूक्लियस, एक दूसरा एटम है जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द शेयरिंग पार्ट ऑफ द टू एटम्स. नाउ द डिस्टेंस between the first nucleus to the another nucleus, that is called covalent length, and half of this is called covalent radius. So you can see that when two atoms are combined together with the covalent bond, the half of the distance from nucleus to the center, that is called covalent radius. For example, इसमें अलग अलग तरह के हो सकते हैं. सपोज क्लोरीन का Cl2Cl2 एटम हो सकता है, सपोज HCl का भी हो सकता है. तो इस तरह से that is the covalent radius. Now come to the second radius, that is called ionic radius. Ionic radius से आप क्या समझते हो? Ionic radius means that again the distance from nucleus to the outermost shell, that is called radius, atomic radius. but यही radius जब हम ions के लिए निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं ionic radius. for example देखो, suppose हमारे पास सोडियम है, सोडियम आयोनाइज्ड हो गया, बन गया Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम के अगर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या लिखते हैं हम 281, और जब +1 जब ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, सो इट बिकम 28 एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज 1. सो नाउ द रेडियस सोडियम का देखिएगा आप, दैट इज द सोडियम इज द फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड दिस इज द थर्ड शेल. इट हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, एंड देन फाइनल इज 1. जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स बिकम 8 इलेक्ट्रॉन. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the 2,8 and this is 2,8,1. So we can say this is sodium and this is Na+. आप देख रहे हो कि एक शेल रिड्यूस हो गया है. इट शोज दैट कि Na+ इज स्मॉलर देन द सोडियम. सो वी कैन से दैट cations are smaller than
their parent atom. So cation are always smaller than their parent atom. अब अगर हम बात करते हैं एनाइंस की, एनाइन सपोज क्लोरीन, that is 287. It absorb one electron and convert into the Cl minus. Electrons are become 288. Now see, this is the nucleus, first shell, second shell, थर्ड शेल. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 1 2 3 4 5 6 7. This much is enough. 7 electron. Now 7 electron absorb the 1 electron and convert into the 288. 2 electron, 8 electron, and again here is again 8 electron. Now अब इससे क्या समझ में आता है कि इसका साइज छोटा है या इसका साइज छोटा है या किसका बड़ा है. सो सी हियर, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हुए हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन आर स्टिल देयर. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम चेक करते हैं तो 8 + 2 10 and 10 + 7 is 17. So number of proton are 17 present over in the nucleus, and here is also the same. Proton are still same, so nucleus power is same, but the number of electrons has been changed. Number of electron change होने की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर वीक पड़ जाएगा, एंड न्यूक्लियर पावर वीक पड़ जाएगा तो ये एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे, और एक्सपैंड हो जाएगा तो इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा. सो वी कैन से दैट कि Cl- इज बिगर देन द Cl ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर पावर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं एंड न्यूक्लियर पावर वीक हो चुका है. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैन से anion are bigger than their parent atom. इस तरह से Cl- Cl से बड़ा हो जाएगा. सो अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं, सो कंक्लूजन निकालने से हमें ये पता चलता है कि सपोज हमारे पास अगर कोई एक एलिमेंट M है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लिया है M+1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लिया है M+2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लिया है M+3. सिमिलरली बनता चला जाएगा m⁻n. और यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया -1, 2 इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया -2, सिमिलरली m⁻n. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे न्यूक्लियर पावर स्ट्रांग होता जाएगा और साइज छोटा होता जाएगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं तो न्यूक्लियर पावर वीक हो जाएगा और साइज बड़ा होता चला जाएगा. तो कैटायंस जो होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट से छोटे होते हैं और एनायंस इज ऑलवेज बिगर. सो दिस इज द ऑर्डर. सो वी कैन से दैट कि एनायन इज बिगर देन देयर पेरेंट एटम एंड कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम. इस तरह से ये हमारी आयोनिक रेडियस खत्म होता है. सो आयोनिक रेडियस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे आप देखिएगा क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुट द ऑर्डर, पुट increasing order of atomic radius, I plus, I minus and I. Now see, this is the iodine plus, iodine minus and iodine. This is the neutral one, this is anion and this is cation. सभी में एक ही एलिमेंट होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी उसका न्यूक्लियर पावर तो सेम ही रहेगा. न्यूक्लियर पावर सेम है लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसका साइज सबसे बड़ा. उसके बाद नॉर्मल आयोडीन,
एंड उसके बाद आयोडीन प्लस, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट. सिमिलरली सपोज क्वेश्चन आता है कि Fe+2 और Fe+3 which is bigger. So can you tell me which is bigger, Fe+2 or Fe+3? So see here, Fe+2 दोनों ही आयरन है यानी इनका दोनों का एटॉमिक जो नंबर है दैट विल बी द सेम, यानी न्यूक्लियर पावर सेम रहेगा. अब न्यूक्लियर पावर सेम है लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं. जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं तो न्यूक्लियर पावर हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा तो साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. साइज छोटा हो गया तो Fe+2 इज बिगर देन द Fe+3. दिस इज द मैनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें इसमें तो अभी I+, I- एंड आयोडीन लगा है. सपोज मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, Na+, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, पुट द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस. क्या लगाएंगे आप लोग? सी, सोडियम का नंबर, आप यहां ध्यान से देखिएगा, सोडियम का नंबर है 11. इट हैज द 11 नंबर. इट्स नंबर इज 13, इट्स नंबर इज 12. +1 है यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, इट बिकम 10. +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, इट बिकम 10. एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, इट बिकम 10. यानी वी कैन से दैट कि जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, लेकिन जब इनके आयंस में कन्वर्ट हो गए तो एटॉमिक, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द सेम. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. नाउ चेक इट कि किसका न्यूक्लियर पावर हाई होगा. नाउ चेक इट हियर, दिस इज नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, यानी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2-8, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2-8. न्यूक्लियर पावर के बेसिस पे देखें, सो न्यूक्लियर पावर इसका 11 है, इसका 13 है और इसका 12 है. अब आप क्लियरली देख सकते हो कि तीनों एलिमेंट्स में शेल तो 2 ही 2 है. इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल और इसमें भी 2 शेल. अब शेल अगर 2-2 हैं तो किसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा? ऑब्वियसली साइज उसका सबसे छोटा होगा जिसका न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा हायर है. सो न्यूक्लियर पावर हायर किसका है? एल्यूमिनियम +3 का 13. सो इट बिकम द स्मॉलेस्ट वन. उसके बाद then after that it's a magnesium +2 and after that it's become sodium plus. So according to that order is become aluminium +3, Mg+2 and sodium. So this is few questions are there. One more question I'll tell you regarding the atomic radius or maybe the ionic radius. Question, N-3, O-2 and F-. Put order. How we connected the order? नाइट्रोजन का नंबर 7, ऑक्सीजन का नंबर 8 एंड फ्लोरीन का नंबर इज 9. 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट्स बिकम 10. 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इट्स बिकम 10 एंड 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इट्स बिकम 10. आप देख सकते हैं सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिकम सेम. इट मींस सभी के पास नंबर ऑफ शेल कितने हो गए? 2-2. It's 2-8, 2-8, 2-8. So they all have the 2 shells. अगर साइज की बात करते हैं, so we know that now the size is depend upon the nuclear power. न्यूक्लियर पावर चेक करें किसका न्यूक्लियर पावर सबसे हाई है. इसका 7, इसका 8 और इसका 9. न्यूक्लियर पावर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इन फ्लोरीन. सो न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा हाई है, यानी सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? F- का. F- इज स्मॉलर. उसके बाद न्यूक्लियर पावर किसका हाई है? ऑक्सीजन -2 का. और उसके बाद किसका है? N-3 का. तो जिसका न्यूक्लियर पावर हेवी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उनका साइज छोटा हो जाता है, और जिनका न्यूक्लियर पावर वीक होता है उनका साइज बड़ा हो जाता है. सिमिलरली जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उनका साइज एक्सपैंड कर जाएगा, और जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे उनका साइज छोटा हो जाएगा. तो इस तरह से हमारा आयोनिक रेडियस का फंडामेंटल बनता है. आयोनिक रेडियस के बाद नेक्स्ट रेडियस आती है, दैट इज कॉल्ड वॉन डेर वाल रेडियस. वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है?
देखिए बेसिकली तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेचर में बॉन्ड बना के ही स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोई आयोनिक बॉन्ड बनाता है, बट फ्यू एलिमेंट्स आर देयर जो है ना बॉन्डिंग के थ्रू नहीं कनेक्ट रहते हैं, जैसे इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है, बट इट डजंट मीन दैट कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है। So van der Waals force of attraction is present between the inert element, और यही जब van der Waals force of attraction वहाँ प्रेजेंट हो जाता है तो inert element के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम van der Waals रेडियस के नाम से जानते हैं। Now see van der Waals radius. van der Waals रेडियस। सी सबसे पहली चीज तो van der Waals रेडियस प्रेजेंट इन इनर्ट गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स। सपोज हमारे पास एक हीलियम का एटम ये है, इट्स अ इनर्ट, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुका है। दूसरा भी है हमारे पास पूरी तरह से। नाउ दिस इज हीलियम एटम एंड दिस इज हीलियम एटम, सो वी कैन से द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड van der Waals लेंथ, और इसका ठीक हाफ अगर हम कर देते हैं सो दिस इज कॉल्ड van der Waals रेडियस। van der Waals radius, van der Waals radius, and here the force of attraction is very less, that's why this is the force of attraction less होने की वजह से ये एटम्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के ठीक हाफ को हम van der Waals रेडियस के नाम से जानते हैं। So van der Waals रेडियस के बाद the next radius is comes that is called metallic radius। metallic radius को हम क्या समझ सकते हैं? सी आप लोगों ने चारों तरफ देखा होगा, हमारे आजू बाजू हर तरफ सॉलिड्स रहते हैं। सॉलिड्स के जो एटम होते हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। सो नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिकम वेरी हाई, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से जुड़े रहते हैं। सो नाउ मेटल में अगर न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम देखें सो दैट इज कॉल्ड मेटालिक लेंथ, और अगर उसके ठीक हाफ कर देंगे सो दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। सो जैसे हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेटालिक रेडियस, सपोज ये एक मेटल है, मेटल का एटम, दूसरे मेटल का एटम। सो नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड मेटालिक लेंथ, और इसका ठीक हाफ क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस अपने को मिल सकता है आयरन में, कॉपर में, जिंक में, जितनी भी मेटल्स होती हैं उन सब में मिल सकता है। अब इसके बाद द लास्ट क्वेश्चन इज कम्स कि किस तरह का ऑर्डर होता है, पुट द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर अबाउट बिटवीन ऑल रेडियस। तो आप लोगों को क्या समझ में आता है कि सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता होगा और सबसे छोटा रेडियस कौन सा होता होगा? अगर आप डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं तो सबसे बड़ा रेडियस है van der Waals रेडियस, दैट इज van der Waals रेडियस। उससे छोटा वाला कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, एंड सबसे छोटा हो जाएगा कोवैलेंट रेडियस। और अगर आयोनिक रेडियस की बात करते हैं तो एनायन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद पेरेंट एटम, एंड सबसे छोटा होगा कैटायन। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये ऑर्डर हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, van der Waals रेडियस, metallic radius, and then covalent radius and
आयोनिक के फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज एनायनिक रेडियस, पेरेंट एटम, एंड देन आफ्टर दैट कैटायन रेडियस. सो दिस इज द रेडियस जो हम चेक करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में. लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम अलग अलग तरह की रेडियस को नहीं लेते हैं, हम इन सब का एवरेज निकालकर एक प्रॉपर नेम रख दिया है कि एटॉमिक रेडियस है. ट्रेंड देखा जाता है कि पीरियोडिक टेबल को जब अरेंज किया जाता है तो ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. किस तरह से ट्रेंड्स होता है इसके अंदर.